हेलो एवरीवन, आई एम प्रावी जैन फ्रॉम करियर काउंसिल इंडिया एंड हम आज एक नए करियर वीडियो के साथ आए हैं एंड विच इज़ करियर एज एन आर्किटेक्ट। आप सभी व्यूअर्स एंड आज हमारे गेस्ट स्पीकर आर्किटेक्ट शान चौधरी का मैं वेलकम करती हूँ। हेलो सर। Hello. Architect Shan Chaudhary is a landscape architect. He has done his Masters of Landscape Architecture from SPA Delhi. He began his journey by attending 5 years course from IPS Indore. His academic progress continued further when he cracked GATE 2012 and opted for Masters from School of Planning and Architecture at New Delhi. He has interned at UCJ Architecture and Environment, Mumbai, under the guidance of great architect Uttam C. Jain, and he also worked with another great architect of the field of landscape architecture, Sir Prabhakar B. Bhagwat, and architect Aniket Bhagwat in Ahmedabad. Today, he is actively participating and practicing architect and continues to deliver quality work in the field of architecture, interior design and landscape architecture, carving variety of projects which are residential, corporate, institutional, recreational, hospitality and commercial spaces. I again welcome you, sir, in our today's talk on career as an architect. Thank you. Thank you, Praveen. Sir, a lot of our viewers are visual learners. So for them, we have prepared an PPT. So I would like to share the PPT. Sure. Sir, can you tell us what is a career in architecture for you? Career in architecture. First of all, thank you so much, Pravi, for inviting me to this wonderful session. And yes, so coming back to this career in architecture, when you say a career in architecture, that means for the next 30 to 40 years of your life as a student, if you say, when you are opting for a career, you are going to spend full another 40 years of your life doing the same profession. So I will just say this thing that in career in architecture, if you opt for a career as an architect, you have so many prospects and so many wonderful gain in life that is going to help you further. So it is a very wonderful field which we will discuss in further. Yes, sir. So you very well said that while choosing a career, we should be sure because we will be doing it continuously for like supposedly with what you said, 40 years, more 40 years in your life. So careers in Yes. architecture is a very proposing and very new field. Like it's not new, but as we see the growth and as we see the new building and the new construction, a good architects is what we require now. Exactly, exactly. So, as you said rightly, Pravi, that nowadays, if you see that even the government is encouraging young professionals and young architects in this field so that you get good designers, good opportunities to flourish. And you know what, that India is a very young country and it is in a developing phase. And present day development that you see around India and the government has proposed around 100 smart cities also. So the demand in the architecture as a career is ongoing and will be on the boom always for the next 30 to 40 years, if you say. So your career is going to be good in architecture. Yes, sir. So can you explain to our students and viewers what is architecture? Right. So when you talk about architecture, when so architecture की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं या किसी फैमिली की बात करते हैं, कोई किसी को अपना घर बनाना होता है या हम जो बोलते हैं हमारे सपनों की जो चीजें होती जिनको हमें बनाना रहता है, जिनको हम क्या बोलते हैं कि एक अपने दिमाग में सोची गई कल्पना को कैसे हम पेपर पे बना के और उसको क्रियान्वित करते हैं, हाउ वी मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी. सो फ्रॉम इमेजिनिंग a thing, a project, or it can be your house, it can be your building, any building, or it can be your personal project जिसको आप कुछ सोचते हैं. हो सकता है आपका घर हो सकता है आपसे बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको बिल्डिंग बनाना हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या जो भी कुछ आप सोचते हैं. तो आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपकी सोच को आप क्रियान्वित करते हैं वास्तविकता में. राइट.
तो Right, sir. इमेजिनेशन से रियलिटी तक का जो सफर तय करता है, उसको एक आर्किटेक्ट किस तरीके से तय करता है, उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, राइट? तो हम Right, sir. आर्किटेक्चर से जैसे आप है ना समझ सकते हैं इस बात को। तो अपने सपनों को कैसे हम रियलिटी में बदलें, ये है जर्नी आर्किटेक्चर। Sir, it is और indeed a very I would say कि इमेजिन जो हमारे सपने हैं उनको रियलिटी में डालने के लिए बहुत सारी स्किल्स लगती है आई थिंक, क्योंकि अब बहुत से लोग हैं, जैसे मैं भी अपने आप को एज ए पर्सन देखूं तो मेरे भी बहुत सारे, मुझे ऐसा घर बनाना है या मुझे ऐसी बिल्डिंग बनाना है, बट हम यस, स्किल्स नहीं होती कि हम उसको रियलिटी में कैसे पुट करें। तो आपके बिल्कुल। अकॉर्डिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती है टू बी अ गुड आर्किटेक्ट? जैसे कि आपने सही बोला कि फर्ज करें एक बार मतलब एग्जांपल करें कि आप को आपका घर, आपको अपने सपनों का घर बनाना है, राइट? तो अभी आप अपने पूरे सपनों के साथ आए हैं कि मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए, मेरे घर में ऐसा अपना हॉल होगा, ऐसा अपना रूम्स होंगे, ऐसा अपना सारी चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी जरूरतें हैं, वो हम्म। लेके आप आते हैं। जब आप एक आर्किटेक्ट के पास आते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, है ना? वहां से ही आपकी रिक्वायरमेंट से एक आर्किटेक्ट का रोल चालू हो जाता है। जब आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और आप समझाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसे कैसे हम वास्तविकता में लाएंगे, उसके बारे में आर्किटेक्चर में हम आपको बताते हैं एज अ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट आपको गाइड करता है अलग अलग स्किल्स के लिए। तो जैसे हम एनालाइज करते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आपने दी एज अ क्लाइंट, तो मैं उसे रियलाइज करूंगा या मैं उसे एनालाइज करूंगा, तो जिसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी, जो हमारा राइट फर्स्ट सर। पॉइंट हम्म। है ना? तो हमने बात करी एनालिटिकल स्किल्स की। आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उसे हम एनालाइज करेंगे और क्या बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन है हम उसके लिए काम करेंगे। फिर आती है बात क्रिटिकल थिंकिंग की, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। हम क्रिटिकल थिंकिंग की जब बात करते हैं, तो एक जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े को एग्जैक्टली हम कहाँ पे कौन सी दीवार रखेंगे, कहाँ पे कौन सी नींव डालेंगे, कहाँ पे क्या चीजें रखेंगे, उसको हम हमारी सोच में पहले हम सोचेंगे, राइट? और वो क्रिटिकल थिंकिंग से मतलब ये होता है कि आप कैसे उसको अच्छे से अच्छा सोच के और उसको सही ढंग से फिजिबल तरीके से, राइट? आपका हम्म। प्रोजेक्ट में पैसा लगता है क्लाइंट का, तो उसको आप कैसे सही ढंग से एक सही दिशा देते हैं। और वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्रिटिकल थिंकिंग, सही सोच, सही दिशा में सोच, राइट? फिर होती है राइट सर। रीजनिंग एबिलिटी, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। जब हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमने किसी चीज को कुछ प्रपोज किया, तो उसके पीछे का रीजन क्या रहा, है ना? जैसे आपने बताया कि मुझे ये चीजें चाहिए, है ना? अपने घर में या हमारी बिल्डिंग में मुझे एक दो तीन चार पांच चीजें, छह चीजें मुझे चाहिए हम्म। ही चाहिए। अब वो रिक्वायरमेंट ही हमें फुलफिल करनी है, साथ में हमें एक रीजन देना है कि कोई दो चीजें तीन चीजें जो है साथ में फंक्शन कैसे फॉलो करेगी, राइट? एक बहुत अच्छी कहावत है आर्किटेक्चर फील्ड में, जैसे आप आते हैं, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। तो जब हम बात करते हैं फॉर्म की और फंक्शन की, दो चीजों के बारे में बात करी। जब हम फॉर्म की बात करते हैं, तो फॉर्म बेसिकली आपका घर कैसा दिखेगा, जो आपने सोचा है, जो आपके सपनों का घर है, राइट? और राइट सर। फॉर्म तो है, फॉर्म कहाँ से आएगा, वो फंक्शन से आएगा। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो कौन सी चीज किसकी तरफ रहेगी, या कौन सी चीज से कहाँ पे आप जाएंगे, वो रीजन, एक रीजन होना चाहिए कि दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए, राइट? तो हमारे पास जैसे घर में अलग अलग स्पेस है, हम जैसे हम हमारे घर में जब घुसते हैं, तो हम एक हॉल में आते हैं, जो ड्राइंग हॉल होता है, जो हमारे गेस्ट के लिए होता है। फिर ड्राइंग हॉल के साथ में हमारा बाकी का घर होता है, जिसको हम लिविंग एरिया बोलते हैं। लिविंग एरिया मतलब हमारा खुद का पर्सनल लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस में हमारा उसके साथ में डाइनिंग स्पेस भी होता है और साथ में किचन भी होता है। तो किचन से डाइनिंग, डाइनिंग से लिविंग, लिविंग से ड्राइंग की कनेक्टिविटी के पीछे का रीजन क्या है? तो आपके पास जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो रीजनिंग एबिलिटी। आपके पास एक रीजन होना चाहिए किसी भी चीज को साथ में रखने की। राइट हम सर। बात करते हैं एबिलिटी टू पे अटेंशन टू डिटेल्स, राइट? अभी हमने, मैं एक बात करूं, जैसे कि अगर कुछ बनाना है हमें, तो मैंने बोला कि पेपर पे चार लाइन बना के मैं उसको दे दूंगा सामने वाले को काम करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो हाँ। अगर मेरे पास वो डिटेल नहीं होगी कि वो कैसा एग्जैक्टली बनेगा, है ना?
डिटेल से मतलब है कि जैसे मान लो कि आपको ईंट की जुड़ाई करनी है, लेकिन दो ईंट के बीच में आपको 10 mm का सीमेंट का माल भरना है ना? तो वो डिटेल जब तक आप नहीं बताओगे तो सामने वाला व्यक्ति जो बनाने है, जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसे नहीं पता। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एबिलिटी टू पे अटेंशन टू डिटेल्स। एग्जैक्टली क्या डिटेलिंग होनी चाहिए उसको पेपर से वास्तविकता तक लाने के लिए। हाँ एग्जैक्टली राइट। पांचवी सबसे छठी सबसे सर आप म्यूट पे हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि आपने हमें रिक्वायरमेंट दिया या आप एक आर्किटेक्ट को रिक्वायरमेंट देते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट को कम्युनिकेट करना, और आपने कम्युनिकेशन किया उसको मुझे वापस आपको कम्युनिकेट करके वो प्रेजेंट करना, राइट? हाँ तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है। कोई भी प्रोफेशन की आप बात करें, आर्किटेक्चर के अलावा भी हम जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम आइडियाज का एक्सचेंज नहीं करते। तो कम्युनिकेशन से यहाँ पे बात आती है कि जो आपकी सोच है वो मुझ तक पहुंचे, और जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो आप उसको ढंग से समझें। तो दोनों के बीच का मतलब क्लाइंट और आर्किटेक्ट के बीच में आर्किटेक्ट। कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होनी चाहिए, है ना? बिना कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान जिसको बोलते हैं, उसके बिना प्रोजेक्ट संभव नहीं। राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। एंड सबसे आखिरी में जो पॉइंट लिखा है डिजाइनिंग स्किल्स। एज अ डिजाइनर, एज अ आर्किटेक्ट की जब हम बात करते हैं, देखो घर बनाने के लिए तो क्या है, आपने सोचा कि चार दीवारी, हम बोलते हैं चार दीवारी के बीच का घर, राइट? तो जो हम चार दीवारी, तो फिजिकली आप चार वॉल्स होती है एक रूम की होती है, लेकिन जब वो चार वॉल्स जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बात करते हैं, जब हम घर की बात करते हैं, तो चार वॉल्स नहीं होती, उसके साथ साथ में बहुत सारी डिजाइनिंग और होती है। चार दीवारी हाँ को असल में बनाने चार में। दीवारी के साथ छत भी है, उसके साथ 8 दीवारी है, 10 दीवारी, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको प्रॉपर ढंग से कैसे डिजाइन करना। जैसे कि मान लो कि आप अगर एक दरवाजे की आप विड्थ की बात करते हो, तो एक इंसान को निकलने के लिए 3 फीट का दरवाजा मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ना? राइट अब सर। अगर मैं उसको बोलूं कि मैं 1.5 फीट की जगह दूंगा तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, है ना? तो डिजाइन करते वक्त मुझे कुछ नपती की जरूरत पड़ेगी, नापतोल की जरूरत पड़ेगी, और वो कैसा दिखेगा वो डिजाइन में मेरे आएगा। तो डिजाइन तो हम सब समझते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि आपके कपड़ों की बात करें एज ए डिजाइनर, लड़कियों की या औरतों की बात करें, उनको फैशन डिजाइनिंग है इसमें ज्यादा पता रहता है। तो हम जैसे कि हमारे कपड़ों को भी डिजाइन करते हैं, वैसे तो ये घर है तो घर की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट हमने यहाँ पे कुछ 7 स्किल्स की बात करी है। एनालिटिकल स्किल्स, एनालाइज करना। क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सही दिशा में सोच। रीजनिंग एबिलिटी, रीजन उसके पीछे का, वो बनाने के पीछे की रीजनिंग क्या होनी चाहिए। एबिलिटी टू पे अटेंशन टू डिटेल, एग्जैक्टली क्या बनना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजाइनिंग स्किल्स। यस सर। अगर मैं इसको और तरीके से अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूँ, तो इट्स लाइक एनालिटिकल स्किल्स कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है, तो आप जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उसे मोल्ड कर रहे हैं, ताकि आप दोनों को उसमें बेस्ट सोल्यूशन मिल सके। क्रिटिकल थिंकिंग कि आप कैसे कोई प्रोजेक्ट को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। यस। एक घर बना रहे हैं आप, तो उसके आप उसके नेगेटिव्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव्स होना चाहिए, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके क्रिटिकली कितने स्टेप कितना सही है वो। एकदम सही। रीजनेबिलिटी कि अगर कुछ अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बेस्ट मटेरियल से अपन बना रहे हैं, वो रीजनिंग। एबिलिटी टू पे अटेंशन इन डिटेल्स कि अपनी कुछ जो सर ने बताया कि इसमें इतना रिक्वायरमेंट है, इसमें इतना रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ क्या वो माइन्यूट चीज़ें हैं जो कि एक घर बनाने में ज़रूरी होता है, जो एक डिज़ाइन बनाने में ज़रूरी होती है, वो आप में होनी चाहिए टू बी एन आर्किटेक्ट, टू बी अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट। कम्युनिकेशन, यस। क्योंकि ये एक टीम वर्क के थ्रू एक कुछ भी डिज़ाइन होती है, कुछ भी आर्किटेक्ट होता है, तो वो एक टीम वर्क का पूरा टीम वर्क से होता है। सो अगर आप क्लाइंट से भी कम्युनिकेट कर पाएँ, अपने जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट कर पाएँ इफेक्टिवली, जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट बन पाएगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ए गुड आर्किटेक्ट। डिजाइनिंग स्किल्स, यस। जैसे सर ने बताया कि डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना डिस्टेंस, कितना स्पेस होना चाहिए इन अ लिविंग रूम, कितना स्पेस होना चाहिए बिटवीन अ डोर। वैसे ही अगर आप जितने जी। क्रिएटिव होंगे, जितने क्रिएटिव होंगे अपने डिजाइन में,
उतने ही आप बेहतर बन जाएंगे इन प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि डिजाइन Yes, आर्किटेक्ट तभी एक अच्छा और इनोवेटिव होगा जब वो जितना क्रिएटिव होगा उतना वो आगे जाएगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। इज इट राइट सर? yes, yes. एग्जैक्टली प्रावी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आर द पॉइंट्स। और यही चीजें जो है एक आर्किटेक्ट हम हमें डेवलप, मतलब आर्किटेक्चर का कोर्स करके आपकी ये सारी चीजें डेवलप होती हैं और ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एज अ आर्किटेक्ट। Yes, sir. So these are the skills. So what is the eligibility criteria to get into a course? ओके, राइट। जब हम आर्किटेक्चर कोर्स की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो कि 10+2 एग्जामिनेशन, मतलब हमारा जो 10th के बाद जो 12th की एग्जाम होती है, Hmm. वो पास करके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कैंडिडेट्स विद एनी बोर्ड विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो हम 11th में सब्जेक्ट लेते हैं उसमें आपका एक Right, sir. ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, जो कि 11th और 12th में आपने मैथ्स से किया तो आप आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हैं। Hmm. 10+2 में भी 12th बोर्ड में 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए तो आपका एडमिशन आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट कोर्स में हो सकता है बीआर में एडमिशन के लिए। अगर 10th एग्जाम के बाद बच्चा जो है डिप्लोमा कोर्स करता है 3 साल का, तो 10th के बाद डायरेक्टली 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करके वो आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकता है विद 50% ऑफ मार्क्स, राइट। Okay. इसके अलावा जो है इंटरनेशनल बैचलरेट डिप्लोमा भी हो सकता है 10th क्लास की एग्जाम के बाद, और 50% मार्क्स ऑफ एग्रीगेट होना चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, राइट। ये मेरा Hmm. क्राइटेरिया होता है आर्किटेक्चर में एडमिशन। हाँ, सो ये क्राइटेरिया जैसे आपने बताया ये बैचलर्स इन आर्किटेक्चर का है। उसके बाद अगर किसी को हाँ, मास्टर्स करना आर्किटेक्चर में तो उसका आप बता सकते हैं? राइट। जो भी बच्चा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर करने की। मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए दो चीजें हैं अवेलेबल। मास्टर्स में एडमिशन के लिए गेट एग्जाम होती है इंडिया में एडमिशन के लिए, जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होती है। गेट का जो पेपर 2 होता है वो आर्किटेक्चर का होता है। वो वाला पेपर जो है आप दे के मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हैं। अनदर एग्जाम इज गेट के अलावा आप डायरेक्टली अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स के साथ साथ एडमिशन ले पोर्टफोलियो बेसिस पे आप अच्छे पीजी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते ओके सर। सर हैं। आफ्टर 2 इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हमारे पास पीएचडी का भी अवेलेबल है, मतलब आर्किटेक्चर में पीएचडी भी होती है, जो कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होती है। 4 इयर्स का पीएचडी लेवल का थीसिस का प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको रिसर्च पेपर देना होता है, तो आप पीएचडी भी आर्किटेक्चर में कर सकते ओके सर। सर बैचलर इन हैं। जी, आर्किटेक्चर के लिए कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में बेसिकली आपको 12th के बाद 3 एग्जाम्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तो जो सबसे मैंडेटरी एग्जाम जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है वो ये है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, राइट, जिसको हम नाटा बोलते हैं। नाटा एग्जाम इज अ मस्ट फॉर एडमिशन इन आर्किटेक्चर आफ्टर 10+2। तो जब हम नाटा एग्जाम की बात करते हैं तो नाटा साल में 2 बार होता है। एक जनवरी वाले सेमेस्टर के अराउंड होता है और एक सितंबर के अराउंड होता है। तो नाटा की एग्जाम की डेट्स आती हैं और बच्चे को अपियर होना रहता है नाटा एग्जाम में, जिसके थ्रू आपका 10+2 प्लस नाटा के स्कोर पे एडमिशन होता है आर्किटेक्चर में। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द जेई मेन पेपर, जो पेपर 2 होता है, मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। जेई का जो पेपर 2 होता है वो आर्किटेक्चर का पेपर होता है। जेई पेपर दे के प्लस नाटा की एग्जाम के साथ आपको नेशनल इंस्टीट्यूट्स में और आईआईटी में एडमिशन मिल सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन मिल सकते हैं। तो जेई पार्ट 2 जो पेपर 2 होता है वो आर्किटेक्चर का होता है। इसके अलावा एएटी एग्जाम होती है जो कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, जो कि क्वालिफाई कैंडिडेट अपॉर्चुनिटी टू एनरोल इन आईआईटी बीआर प्रोग्राम, राइट। आईआईटी के लिए अलग से जेई के साथ साथ में एएटी एग्जाम भी होती है, जो कि आईआईटी की जेई की एडवांस पेपर क्लियर करने पे आईआईटी में आपको एडमिशन मिलता है। तो हमने बात करी नाटा एग्जाम की, जेई पेपर 1 की और जेई पेपर 2 की, राइट। ठीक है सर। और सर विच आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स टू डू बी आर्क?
टॉप इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर जो हम बोलते हैं, और इसके अलावा आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है कैलीकट में, सेप्ट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद की, एसपीए दिल्ली, मतलब मेरा भी मास्टर्स एसपीए से, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो न्यू दिल्ली का है, दैट इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद आता है आईआईएसटी शिवलपुर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर आता है एसपीए की भोपाल ब्रांच, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, एंड हमारे पास आते हैं बिरला इंस्टीट्यूट, मतलब बिट्स के मेसरा कैंपस। ओके सर। एंड सर हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। थैंक यू। ओके एंड सर, इसके अलावा व्हाट आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एन आर्किटेक्ट फेसेस इन हिज करियर? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम एज अ आर्किटेक्ट फेस करेंगे वो ये है, देखो आर्किटेक्ट होना अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो आपका क्लाइंट है वो आप पे निर्भर है उसके घर के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो तो जो है वो तो किसी भी प्रोफेशन में होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसके बिल्डिंग को आप कैसे बनाओगे, क्या वो वर्क प्रोग्रेस सही ढंग से हो रहा है, और क्या आपकी डिजाइन के हिसाब से हो रहा है, क्या जो आपने सोचा था वही बन रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, अगर कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कैसे होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्किटेक्ट की होती है, या नया कंस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली आर्किटेक्ट की डिजाइन के हिसाब से होता है। और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए और क्लाइंट्स के बजट को ध्यान रखते हुए आपको अपना प्रोजेक्ट प्रोसेस करना होता है, तो फिजिबिलिटी एक इशू आ जाता है। ठीक है, फिर पोटेंशियल डिजाइन जो हम बना रहे हैं, क्या वो सेफ है, इकोनॉमिकली वायबल है, फंक्शनल है और एस्थेटिक है। तो सेफ तो डेफिनेटली वो हमें सोचना ही पड़ता है कि जो हमारा घर है वो सेफ होना चाहिए। इकोनॉमिकल तो डेफिनेटली हमको कितना पैसा लग रहा है, तो कहाँ पे सही दिशा में सही ढंग से पैसा लगता है क्लाइंट का, वो हमें देखना पड़ेगा। फंक्शनल डिजाइन है कि नहीं, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी, तो फंक्शनल डिजाइन से मेरी बात आती है कि एक स्पेस है, एक रूम है, उसको कितनी जगह लगनी है और क्या वो सही ढंग से प्लेस किया हुआ है, फंक्शनैलिटी की बात करते हैं हम। और फिर आती है एस्थेटिकली प्लीजिंग, क्या है कि घर तो सब बना लेते हैं लेकिन सर आप म्यूट पे चले गए। तो एस्थेटिकली प्लीजिंग ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर दे ऑफन एम्प्लॉय यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड डायग्राम देयर डिजाइंस एंड इंश्योर देयर फिजिबिलिटी, राइट। तो जब हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात करते हैं, देखिए अभी आजकल की जो है नई टेक्नोलॉजी है, सब ऑनलाइन हो चुका है, तो हम जो नक्शे बनाते हैं उसको भी सही ढंग से और नगर निगम के सही दायरे में रह के कैसे पास करेंगे, और वो असल मायने में सही तरीके से डिजाइन बननी है, कितनी जगह हमको ओपन एरियाज छोड़ने हैं, कितनी जगह हमें बनाना है, क्या उसकी प्रॉपर लीगल सैंक्शन है, क्योंकि आप बना देंगे क्लाइंट के लिए लेकिन वो प्रॉपर लीगली सैंक्शन होना चाहिए। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं, और हमारी डिजाइन हम कैड सॉफ्टवेयर पे, जो आजकल हम बात करते हैं ऑटो कैड की और बाकी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड चीजों की, तो एक सॉफ्टवेयर की बहुत महत्वपूर्णता बढ़ गई है आजकल के जमाने में। फिर जो जनरली आर्किटेक्ट होता है, एक लाइन खींचने से वो बिल्डिंग पूरी ढंग से क्लाइंट उसमें सेट है, बैठ गया है, वहां तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पूरी जर्नी पेपर पे एक लाइन बनने से आगे तक का उस घर में व्यक्ति के रहने तक का सफर एक आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती राइट है। जी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन आर्किटेक्ट मुझे समझ में आई, विच आर कि एक बिल्डिंग के स्टार्ट होने से लेके उसके फिनिश होने तक, या फिर जो बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें क्या नीड या क्या स्पेसिफिकेशंस और ऐड करने हैं, क्लाइंट के प्रॉब्लम्स के बेसिस पे, क्लाइंट के डिस्कशन के बेसिस पे, उसको हम कैसे बिल्डिंग को सेफ, इकोनॉमिकल, सेफ फॉर लिविंग, सेफ फॉर वर्किंग, इकोनॉमिकल, उसके बजट करना, फंक्शनल, जैसे आपने बताया एक रूम से दूसरे रूम की कनेक्टिविटी, कितना फंक्शनल वो वर्क यूज हो सके पूरा स्पेस, एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग, कितना अट्रैक्टिव एंड कितना क्रिएटिव वो बन सकता है, वो एक आर्किटेक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका जो कैड सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से वो इसको फिनिश कर पाता है, एंड जो रेगुलेशंस रहते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ के,
उसके वो भी उसको एनालाइज करना रहता है आर्किटेक्ट को, जी, राइट सर? बिल्कुल, यस, ये एकदम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। अब सर, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज एन आर्किटेक्ट हैज इन फ्यूचर? कि अब उसने बीआ कर लिया, अब उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एंड क्या क्या गेट्स और ओपन होते हैं? जी, जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं एज अ आर्किटेक्ट, तो जब हम पांच, देखिए आर्किटेक्चर एक इतना सुंदर कोर्स है, आप अपने विद्यार्थी जीवन का 5 साल देते हैं ऐसे कोर्स में। तो 5 साल में कई ऐसे पहलू है जो एक आर्किटेक्ट को डेवलप होने में सीख देता है, सिखाता है, और आपको पूरा पॉलिश करके आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद आप कई जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एज अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट आप खुद काम कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी दूसरे आर्किटेक्ट के अंडर आप जॉब सीख सकते हैं। किसी एक मल्टीनेशनल फर्म में या एमएनसीज में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आप बहुत अच्छे से अपना जॉब प्रोस्पेक्ट्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप एज अ बिल्डर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके अलावा हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आर्किटेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या नगर निगम की जब हम बात करें, एमएनसी की या आईडीए की बात करें, या डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती है, शहरीकरण की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसमें भी आर्किटेक्ट का बहुत अच्छा हाँ, अर्बन महत्वपूर्ण प्लानिंग में। जगह रहती है ना? प्लानिंग में, टाउन प्लानिंग में, टीएनसीपी हाँ डिपार्टमेंट्स में, आईडीए में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट हाँ। सेक्टर में जॉब ही जॉब है। तो एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करता हूँ। जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइनर हम बन सकते हैं। मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइनर की हम बात करें तो एज अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट आप काम करेंगे। एज अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट जब हम पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास सारी चीजें रहती है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास, जैसे हम ईएनटी की बात करें या कोई किसी स्पेसिफिक रोग की बात करें, आई स्पेशलिस्ट की हाँ, बात करें, वैसे ही आर्किटेक्चर में भी आर्किटेक्ट होने के साथ साथ स्पेशलाइजेशंस आप होते हैं। स्पेशलाइज फील्ड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, उसके अलावा लैंडस्केप आर्किटेक्ट जैसे आप काम कर सकते हैं। मैं खुद भी एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूँ, मेरी स्पेसिफिक सर्विसेज है लैंडस्केप के लिए। एज अ इंटीरियर आर्किटेक्ट हम बात करें, जब हम बिल्डिंग के अंदर हम इंटीरियर्स की बात करते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनर जो आज हमारे साथ में है, हमारे एलाइड फील्ड्स ही हैं सारी इंटीरियर डिजाइनर्स की भी, तो वो भी आर्किटेक्चरल वर्क करके आप एज अ इंटीरियर आर्किटेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एंड रिसर्चर जब हम आर्किटेक्चर का कोर्स करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। हम बड़े बड़े बिल्डिंग ग्रुप की बात करते हैं, बिल्डर्स की बात करते हैं, जैसे इंदौर में भी काफी नामी बिल्डर्स हैं जिनको आर्किटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप किसी बिल्डिंग ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं एज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डिंग रिसर्चर, जैसे आप वर्क कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन, तो इसमें मैं बता सकता हूँ, आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन मींस आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन एक फील्ड होती है जो आपकी ऐतिहासिक धरोहर है, उनको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे, उनको कैसे आप कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन, उसमें भी आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन डिजाइन एज अ लैंड डेवलपर की मैंने बात करी, एज अ बिल्डर या लैंड डेवलपर की हम बात करते हैं, तो बड़े बड़े स्केल पे जो हमारी सिटी लेवल की प्लानिंग होती है, उसमें आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ सर, राइट। मतलब पर्सनल इसमें वर्किंग प्राइवेट फील्ड ऑफ प्राइवेट आर्किटेक्चर प्रैक्टिस भी आप कर डिजाइन। सकते हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी मिलके आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल, सब असीमित अपॉर्चुनिटीज ओपन संभावनाएं है। हैं। आप प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट तक सारी चीजों में आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। और बात रहती है एक्सपीरियंस की, तो वो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस तो काम करने से ही आता है। तो हम जितना हाँ, काम करते हैं उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। राइट सर। जी। सर, तो हु आर द टॉप रिक्रूटर्स इफ अ पर्सन वांट्स टू बी रिक्रूटेड, तो किसके अंडर उनको करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स भी हैं ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड की भी हम बात करें, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि एमएनसीज की हम बात करें, तो कुछ नाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे शापुर जी पालून जी एंड कंपनी, हम बॉम्बे की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है जिसका बहुत बड़ा नाम है। डीएलएफ है, इंदौर में भी काफी आपको यहाँ पे हाँ। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, डीएलएफ के भी कैंपस प्लानिंग है। क्रिस्टोफर चार्ल्स मैनेजर, सीबीए आर्किटेक्ट जो है पूना के, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट्स। शिल्प आर्किटेक्ट्स, ऑस्कर एंड पॉनी आर्किटेक्ट्स, शांभवी आर्किटेक्चर फाउंडेशन, सीपी कुकरेजा एसोसिएट्स है, कुकरेजा जो दिल्ली वाले हैं। एंड देयर आर मेनी टॉप रिक्रूटर्स आल्सो हु आर वर्किंग फॉर आर्किटेक्चरल कॉज, राइट। दे आर ऑल अक्रॉस वर्ल्ड एंड अपॉर्चुनिटीज वो सब जी, टू द अक्रॉस न्यू। इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, दोनों जगह पे।
Okay, sir. Sir, for more details, viewers, you can contact us through these social media platforms. And if you have any query regarding architecture, you can also, and if you want to ask something from Architect Shan Chaudhary, you can message us and we can contact him and we can connect you both through that. And sir, Most happy to. yes, sir, thank you. Sir, I would also like to thank you for your time and energy which you gave us here. And sir, if you Thank you so much. yes, sir. So if you want to say something to our viewers, it would be very good. Sure, Ravi, I would definitely मैं आपके सारे व्यूअर्स को, करियर काउंसलिंग के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रावी जी के माध्यम से हमें यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे हमें किसी कोर्स के बारे में इतना अच्छी जानकारी और इतनी इन डेप्थ में जानकारी मिलती है. तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द व्यूअर्स. और आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड जैसे आज आपने टॉपिक उठाया, तो उसके लिए मैं सभी एस्पिरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है, निश्चय है, तो आप बहुत अच्छी फील्ड में आप प्रवेश कर सकते हैं. आर्किटेक्चर बहुत अच्छी चीज है और आप डेफिनेटली इसको आगे एज अ करियर ऑप्शन आप परस्यू करें. इसी के साथ साथ थैंक यू प्रावी सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल, and thank you so much viewers for listening me. So the whole CCI team wishes you a very good future and bright future. Thank you so much. Thank Thank you you, so sir. much.